Hello students, in today's video we'll be learning class 12 English, poem number 2.5. Name of the poem is Father Returning Home. This poem is written by Dilip Chitri. In this video I have covered poem explanation along with figures of speech. Father Returning Home. Okay, before I start explaining this poem, let me tell you, if you are looking for more videos on English grammar, English writing skill or academic English chapters, say 11th, 12th or even 8th, 9th, 10th, you can visit my YouTube channel Learn with BS. You will find all the videos on my channel. If you really like it, do press the like button and don't forget to subscribe or share it with your friends. So let's start with the poem. Father Returning Home. Okay. This poem is about a father who comes home tired. This poem tells how the life of father becomes at old age. Father is the one who spends his full life earning for his family members, taking care of his wife, children, parents. तो फादर की जो लाइफ है पूरी लाइफ फैमिली के लिए होती है, बट व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, हाउ ही इज़ निगलेक्टेड, हाउ ही इज़ अवॉइडेड, उनकी लाइफ कैसे हो जाती है ओल्ड एज में, that poet has told through this poem. We should not neglect them, we should take good care of our old parents. That is what he has tried to convey through this poem. This poem is written by Dilip Chitri. He was born in 1938. He passed away in 2009. He was celebrated bilingual poet. Bilingual यानी two languages, and translator with remarkable work in Marathi and English. Because he was good at Marathi and English, so he was a bilingual poet. His versatile creativity extends up. Versatile यानी good at many things. Painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Academy Award both for poetry as well as his well-known translation work, Says Tuka, popular Abhangas, spiritual poems by Sant Tukaram. He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. Exile, alienation, self-disintegration and death are observed to be major themes of his works. अभी इन्होंने 16 ईयर्स की एज में ही क्या किया था, अपना ट्रांसलेशन चालू कर दिया था. और जो महाराष्ट्र के पोएट से संत तुकाराम थे, ऐसे जो भी उनके अभंग वगैरह थे वो भी इन्होंने इंग्लिश में लिखने की कोशिश की थी. और मेन जो इनका थीम रहा है इनके पोएम में से, जो घर को छोड़ के एग्जाइल या एलिनेशन, सेपरेशन या डेथ, इनके रिलेटेड ही उनकी जो पोएम्स रही हैं. जैसे ये पोएम भी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अबाउट father who is alone in this man-made world, though he has sacrificed his full life, but even then he is found to be separated, alone, living his different world. This poem is taken from Traveling in a Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. It depicts his full, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. कि father का कैसा daily routine कितना बुरा है. You will feel pity on him. It describes a forced alienation at home, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hardworking father, who as a result is forced to retire into solitude. Solitude यानी अकेले में. कैसे उसकी फैमिली उनके साथ शेयर नहीं करती अपनी खुशियाँ, अपने दुख, और ये जो हार्ड वर्किंग फादर हैं वो अकेले ही रह जाते हैं घर में भी. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. Man-made world में ये man अकेले रह जाते हैं. Okay, so this is all about poet. Let's start reading the poem. Father Returning Home. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseen eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. अभी दिस पोएम सेज, पोएट सेज कि फादर जो हैं लेट इवनिंग में, शाम को ऑफिस से वापस आ रहे हैं और वो जो है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में खड़े हैं अमंग साइलेंट कम्यूटर्स. कम्यूटर्स यानी जो रोज़ ट्रैवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो उनको बोलते हैं कम्यूटर्स. तो एकदम कम्यूटर्स के बीच में एकदम शांति से फादर जो है ट्रेन में खड़े हैं. येलो लाइट है यानी कि इवनिंग हो गई है, और जो सबर्ब्स हैं उनकी आंखों से दूर होते जा रहे हैं.
यानी विंडो से अगर आप देखोगे तो सब जो सीन्स हैं सबर्ब्स के, मुंबई में जो सबर्ब्स हैं, तो वो सीन्स वो देख ही नहीं रहे हैं उनको, बिकॉज ही इज़ टू टायर्ड, और वो देख ही नहीं रहे हैं और वो सीन्स पास होती जा रही हैं। देन पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज क्लोथ्स, हिज शर्ट एंड पैंट आर सॉगी, सॉगी यानी थोड़े से गीले हैं, तो इससे पता चलता है शायद बारिश का टाइम होगा, इसके लिए उसके थोड़े कपड़े गीले हैं। एंड इज़ ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड, रेन कोट है यानी शॉर्ट इट इज़ मानसून सीज़न, उन पे दाग भी लग गए हैं, कीचड़ भी लग गया है। उनके पास एक बैग है जो कि पूरी बुक से बड़ी हुई है और वो बैग पूरी गिर रही है। हिज आईज डिम्ड बाई एज फेड होमवर्ड्स थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, अभी उनकी जो आईज हैं एज की वजह से डल हो गई, उनकी आई साइट कम हो गई है और वो घर की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ ह्यूमिड यानी मॉइस्चर वाली, क्योंकि बारिश है, मून की रात है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, अभी पोएट इज टेलिंग कि मैं उसको देख रहा हूँ, अभी वो फादर जो है ट्रेन में से उतर रहे हैं, ऐसे ट्रेन में से उतर रहे हैं जैसे कोई बड़ा सेंटेंस में से अक्षर निकाल दिया हो, तो ऐसे बड़े सेंटेंस को पता भी नहीं चलता है कि एक वर्ड उसमें से निकल गया। तो लोकल ट्रेन में भी इतने सारे लोग हैं कि उनमें से एक जो है उतर गए तो लोकल ट्रेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कम्यूटर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आदमी कम भी हो गया तो। He hurries across the length of a grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. Now ट्रेन में से उतर के वो ग्रे प्लेटफॉर्म यानी वो सीमेंट की वजह से ग्रे कलर हो सकता है, या कि अभी यहाँ पे वो पोएट सजेस्ट करें कि उनकी ओल्ड एज, डलनेस, अकेलापन, उसको भी ग्रे कलर से ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं। तो वो जल्दी से उतर के प्लेटफॉर्म की ओवरब्रिज नहीं ले रहे हैं, वो क्या करें, रेलवे लाइन क्रॉस करें, बिकॉज ही इज़ इन अ हरी टू गो होम, उसको अपनी फैमिली के साथ जाने को, मिलने को बहुत ही घाई है, इसके लिए वो शॉर्टकट रास्ता ट्राई कर रहे हैं, पटरी क्रॉस करके एक गली में एंटर कर रहे हैं। उनके जो चप्पल्स भी हैं पूरी कीचड़ से भरी हुई हैं, बट वो फिर भी घाई में जल्दी में आगे बढ़ रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, अभी वो घर पे आ गए, होम अगेन घर पे आ गए। तो पोएट इज टेलिंग, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो वीक टी पी रहे हैं। वीक टी यानी अच्छी चाय नहीं है, या तो टेस्ट में वो ख़राब है, बहुत पानी है, या स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी एकदम वीक टी उसको बोल रहे हैं कि अच्छी वाली चाय भी उनको नहीं है। उनको जो खाना है बासी है, स्टेल यानी बासी, उनको खाना भी फ्रेश नहीं मिल रहा है, रखा हुआ बासी खाना है। देन ही इज़ रीडिंग अ बुक। See here they have shown picture of father in local train among commuters, bag है book से भरी हुई, he is traveling. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Now he is telling he goes into the toilet, अभी टॉयलेट में जा रहे हैं, contemplate यानी he is thinking deeply, टॉयलेट में जाके man's estrangement यानी alienation from a man-made world, यानी ये जो आदमी से बनी हुई वर्ल्ड है उसी में ही वो आदमी से अलग हो गए हैं, जो टॉयलेट में जाके भी वहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ही इज़ टेलिंग कि जब भी वो वॉशरूम से बाहर आते हैं, सिंक में वॉश बेसिन में हाथ धो रहे हैं तो उसके हाथ भी कांप रहे हैं, और जो पानी है उनके ब्राउन हैंड्स यानी एज की वजह से उनके यानी ही इज़ डार्क कलर्ड यू कैन से, तो ब्राउन हैंड्स पे पानी भी रन कर रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम, अभी कुछ जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके हाथ पे, बालों पे चिपक गए हैं, ग्रेइंग हेयर यानी एज की वजह से उनके बाल जो है ग्रे हो गए हैं, रिस्ट यानी कलाई, तो वहाँ पे वो पानी की बूंद चिपक गई है जब भी वो हैंड्स वॉश कर रहे थे। उनके जो बच्चे हैं सलन यानी बैड टेम्पर्ड, अच्छे स्वभाव वाले नहीं हैं, उन्होंने तो उनके साथ अच्छी बुरी बातें शेयर करना ही छोड़ दी है, सीक्रेट शेयर करना ही छोड़ दिया है। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अभी वो सोने जाएंगे, यानी घर आए तो एक तो आप देखोगे उसको खाना अच्छा नहीं मिला, चाय अच्छी नहीं मिली, उसके बाद उसके साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं है, अच्छी बुरी बातें जो भी है दिन भर की कोई शेयर करने के लिए नहीं है, बस ही सिंपली हैज़ टू ईट फूड एंड गो टू होम। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग,
अभी वो रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो में भी कंटिन्यूस वो जो जब भी फ्रीक्वेंसी नहीं आती है बराबर तो कुछ वाइब्रेशन आती है, स्टैटिक साउंड आता है, वो आ रहा है और वो बिल्कुल भी रेडियो भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। जब भी वो सोने जा रहे हैं तो रेडियो की म्यूज़िक भी उनके लिए अच्छे से नहीं बज रही बिकॉज फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं अपने पूर्वजों के, यानी अबाउट पास्ट। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी फ्यूचर, उनके जो चिल्ड्रन हैं उन सब के बारे में सोचते सोचते सो रहे हैं कि नोमैड्स यानी आदिवासी लोग जो हैं सब कॉन्टिनेंट में एकदम पतले से रास्ते में से एंटर कर रहे हैं। This poem is by Dilip Chitri. So in all, if you see, poet has tried to show how life of father becomes when he is old. He has sacrificed his full life earning for his family members, taking care of children's education, doing all those necessary things for home front. But at the old age, when he really needs to be taken care, he needs love, care, he is neglected. So we should not do that. We should take good care of our parents. So this is all about our poem. Let's have a fast look on the poetic device, that is figures of speech of this poem. Okay. Now if you see this activity, fade homage through the humid monsoon night. In the above line, weather is humid. जो मानसून में वेदर जो होती है ह्यूमिड होती है, नमी होती है, बट नाइट नहीं है ह्यूमिड। बट यहाँ पे क्या किया, द एपिथेट और एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेदर टू नाइट। तो ह्यूमिड वेदर नहीं लिख के क्या लिखा है, ह्यूमिड नाइट लिखा है पोएट ने। तो जो एडजेक्टिव है वो करेक्ट नाउन को ना देके किसी और नाउन को दिया है। तो व्हेन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइटफुल नाउन टू सम अदर नाउन इन द सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। आपको पोएम में से एक और एग्जाम्पल बताना है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। वंस अगेन आई विल टेल यू, ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी जो एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन को देना चाहिए उसको ना देके किसी और नाउन को दिया है। जैसे ह्यूमिड वेदर है बट यहाँ पे पोएट ने लिखा है ह्यूमिड नाइट, तो ह्यूमिड नाइट नहीं है, तो यानी ह्यूमिड जो है एडजेक्टिव किसी और नाउन को दिया है। सो ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड, सो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। I have given one more example over here, transferred epithet का। Suburbs slide past his unseen eyes. Okay, unseen eyes नहीं है, unseen suburbs हैं, जो उसने कभी देखे ही नहीं, उसको इतनी थकान है जी suburbs को देखता ही नहीं है। तो unseen adjective is given to eyes which should have been given to suburbs. So this is also example of transferred epithet. Then you have to identify and write the lines from the poem which express the following figure of speech. Simile. Simile is what? Direct comparison using word as or like. Two or more things are compared directly using word as or like. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a big sentence. तो फादर की कंपैरिजन की है एक बड़े सेंटेंस में से जैसे एक वर्ड ड्रॉप हो जाता है, तो लाइक वर्ड यूज किया है। सो डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग वर्ड लाइक, सो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली। सो आई हैव रिटन दिस सेंटेंस फ्रॉम द पोएम। Then you have to give example of alliteration. Alliteration क्या होता है? When two or more words in the sentence start with the same letter, they have same sound. जैसे crosses the railway line, enters the lane. If you see here, line, lane, both the words start with letter L. So figure of speech is alliteration. L sound is repeated or L is repeated. ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल देना है। ओनोमेटोपिया क्या होता है? व्हेन वर्ड रिप्रेजेंटिंग साउंड आर यूज्ड। कोई भी, जैसे कोई हवा की आवाज़ हिसिंग, कोई रिंग की आवाज़ ट्रिंग ट्रिंग, कोई भी ऐसे साउंड के रिलेटेड वर्ड है। जैसे पोएम में से लिया है लिसनिंग टू दी स्टैटिक ऑन दी रेडियो ड्रीमिंग। स्टैटिक क्या है? जब भी रेडियो में आपको बराबर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, जिंग जिंग आती है, दैट इज स्टैटिक। तो स्टैटिक इज अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग साउंड, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। देन यू हैव टू गिव repetition when words are repeated for poetic effect. So I have written example, man's estrangement from man-made world. So if you see man word is repeated, so figure of speech is repetition. Then I see him drinking weak tea, eating a stale chapati. Here stale chapati stands for the food, non-nourishing food or diet, where the part symbolizes the whole, that is food. Guess the name of the figure of speech. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
पोएट क्या बता रहे हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग वीक टी या ईटिंग स्टेल चपाती, तो खाली वो खाने में चपाती खा रहा है, नो, इसका मतलब है उसका जो फूड है वो स्टेल है, बासी है। तो एक वर्ड लिखा है इंस्टेड ऑफ फुल मील और फुल फूड, दे हैव रिटन ओनली चपाती। तो वेन एवर पार्ट रिप्रेजेंट्स होल, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिनेक्डकी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये सेंटेंस में क्या फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज सिनेक्डकी। पार्ट फॉर होल, हियर चपाती इज पार्ट विच रिप्रेजेंट्स फूड, द होल। पूरा फूड लिखने के बजाय लिखा है चपाती, तो एक पार्ट बताया है। सो व्हेन वन पार्ट रिप्रेजेंट्स होल, वी अंडरस्टैंड कि ये जो है चपाती स्टैंड्स फॉर फूड हियर। तो such figure of speech is called synecdoche. So this covers all the figures of speech also of the poem. I hope this poem explanation was clear to you. If you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you for watching this video.